then find the time period of the signal. So we will start with the first numerical problem. So it states that you have to find the periodicity of the given signal. Means you have to identify whether the given signal is periodic or not. This is the first numerical problem, part A. X of t is given to you sine 3 pi t plus pi by 4. If you look at the numerical problem, the signal x of t, which is given to us as sine bracket 3 pi t plus pi by 4, this term which is written in the bracket can easily be replaced by another symbol theta, that is sine theta, right, where theta is equal to 3 pi t plus pi by 4. And we know that the sine of the sine and other similar signals are periodic in nature. They are everlasting in nature, so it has to be periodic. You can further simplify it by writing it as sine omega t plus phi, where omega t is will give you some angle, and phi is generally known as phase shift, which is currently equal to pi by 4. Now the difference between this term, that is omega t, and phi is that phi is independent of time, whereas omega t, that is this angle term, is dependent upon time. Therefore, we can say that the sine omega t plus phi or sine 3 pi t plus pi by 4 is a periodic signal. And we know that omega naught, that is the angular frequency, is equal to 2 pi divided by capital T. And from that, you can find the time period of the signal, which is equal to 2 by 3. So in this way, you can find whether the given signal is periodic or not, and then after finding that, you can identify you can also find the time period of the signal. So this is a simple part. Is a very simple thing, that is a signal is given to you and you have to identify the periodicity and then find the time period of the signal. Next is part B. So signal is given to us, that is x of t is equal to exponential function minus j plus twice of t. So this signal is given to us. You have to identify whether this signal is periodic, and if it is periodic, then find the time period of the signal. तो आप लोग बताओ इसके बारे में कि ये सिग्नल पीरियोडिक है जो पार्ट बी में दे रखा है या नॉन पीरियोडिक है? नॉन पीरियोडिक है। ओके, संचित? नॉन पीरियोडिक। संध्या? यस सर। संध्या, जो पार्ट बी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखा है, ये पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक है? सॉरी सर, आई डोंट नो। हाँ जी, संगीता? सर नॉन पीरियोडिक है ये। शिवम, आप नॉन पीरियोडिक क्यों बोल रहे हो, किस लिए? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर, इसलिए। दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उसमें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस जे प्लस ट्वाइस ऑफ टी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने से नॉन पीरियोडिक हो जाएगा? नहीं सर, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर तो डिक्रीजिंग ही होगा। तो सर पीरियोडिसिटी तो नहीं शो करेगा सर वो। ठीक है। संगीता, आप किस लिए कह रहे हो कि ये नॉन पीरियोडिक है? सर क्योंकि यहाँ पे जो ए रेज पावर माइनस जे टी और माइनस 2t है, ये डी के फंक्शन है और नॉन पीरियोडिक है ये। दोनों ही नॉन पीरियोडिक हैं सर। e माइनस 2t इज नॉन पीरियोडिक। सो जैसा अभी संचित ने, संध्या ने और शिवम, आप सभी ने बोला है कि ये सिग्नल जो है वो नॉन पीरियोडिक है, तो फिर नॉन पीरियोडिक ही होएगा, आप सब बोल रहे हो तो इसलिए नॉन पीरियोडिक ही है। इसमें हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस जे प्लस ट्वाइस ऑफ टी, इसमें इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस जे टी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस ट्वाइस ऑफ टी। We know that this function, that is e raised to power iota theta or e raised to power minus jt, is a kind of a
sinusoidal signal, and it can be represented as cos theta plus minus eta sin theta. That is e raised to power plus minus eta theta. So in this case, that is e raised to power minus jt can be represented as a cos theta minus eta sin theta, or cos theta minus j sin theta. This is a periodic signal. It is very clear that the cos theta plus eta sin theta or cos theta minus eta sin theta is always a periodic signal. You can find the time period of this particular function, that is e raised to minus jt, with the help of relating these two functions, that is e raised to minus jt can be related with exponential function j omega t, where omega comes out to be equal to 1, and from omega you can find the time period, and the time period will be equal to 2 pi, जो हमेशा एक साइन या कोसाइन वेव का रहता भी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो. So t will be equal to 2 pi. So this function is a periodic in nature, and we do not have any doubt in our mind that it can be a whether it is a periodic or a non-periodic. It has to be periodic, and we can also find the time period of the signal. Now we have left with this function, that is e raised to minus 2t. तो जैसा बाकी स्टूडेंट ने बोला है, e raised to minus twice of t जो फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है. So this function, that is e raised to minus jt multiplied by e raised to minus 2t. So this function, which is a non-periodic function because it is exponentially decaying function, when multiplied with the periodic function, the resultant signal will also be a non-periodic. So it will convert e raised to minus jt from periodic to non-periodic once it gets multiplied by e raised to minus twice t. So जो पहला फंक्शन है, ये एक तरह से सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आपको देगा. तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन जो है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, मैं स्केच कर रहा था. ये आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होती हैं जो अभी प्लॉट किया हुआ है. तो दीज आर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन. e raised to minus jt will give you a sustained oscillation like this. But this function, when multiplied by e raised to minus twice of t, now e raised to minus twice of t, if you try to plot the graph of e raised to minus twice of t, so e raised to minus twice of t का ग्राफ इस तरह से आएगा. ये e raised to minus twice of t का है, that is decaying function. So when this decaying function multiplied by this function, then the signal will also get that is e raised to minus jt multiplied by e raised to minus twice of t will also become a decaying function like this. Right? Its magnitude will increase, and after that the magnitude will fall to some level. Then it will again increase, but do not rise to the +1 मैक्सिमा. इस तरह से ये आपका सिग्नल जो है वो डिकेइंग फंक्शन बन जाएगा. राइट, इसकी जो स्लोप है डिके की, इट विल रिजेंबल विद e raised to minus twice of t. Now this function, that is e raised to minus j t multiplied by e raised to minus twice of t, is not a periodic signal, because here the periodicity has been lost in this case, because for example, if you start with 0 and then it reaches at +1, then it reaches at nearly -1, then later on it do not come back to +1, and also do not come to the minus. So +1 point or -1 point is not going to be repeated further in the signal. So that's why there is no periodicity left in the function, that is e raised to minus jt multiplied by e raised to minus twice of t. Hence the complete signal become a kind of a signal which having damped oscillations with certain damping in it, and because of that the sustained oscillation behavior or sustained oscillation characteristic of e raised to power minus eta theta has been lost, because it has been multiplied with e raised to power minus twice of t. So therefore it is a aperiodic signal or non-periodic signal. यही इसमें आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो पार्ट बी के रिगार्डिंग. सर इसमें माइनस जे क्या आया था?
माइनस जे, वो तो आपका माइनस जे तो आपका इमेजिनरी पार्ट बनाता है ना सिग्नल का, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर ये आयोटा है। हाँ, माइनस जे आयोटा ही रहेगा। आई आई कैप आई जे के, ये तीन सिंबल्स हैं, इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। ई रेस्ट पावर आयोटा थेटा, या ई रेस्ट पावर माइनस जे थेटा, या ई रेस्ट पावर माइनस के थेटा। तो आई जे के इन तीनों में से कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। ओके सर। तो इसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थेटा जो है, या ई रेस्ट पावर माइनस जे टी, इसको अगर एक्सपेंड करोगे, देयर विल बी रियल पार्ट विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड देयर विल बी एन इमेजिनरी पार्ट विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा सर, मुझे लगा सर कि ये कांस्टेंट है सर कोई। नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं, जे है। तो जे ज्यादातर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है आयटा को, बट क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स पर नंबर्स तो पढ़ लिए होंगे अभी तक, नहीं प्लस यस सर, ये में। सर पढ़े हैं सर, ये आइलर फॉर्म है ना सर। हाँ, तो इसमें जो है, अभी जैसे मे भी उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती होगी, ये आगे चल के इसमें इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट आते हैं ना, उसमें कई सिग्नल्स होते हैं। जैसे मान लो ई रेस पावर माइनस एक्स टी लिख दिया, एक्स वन टी, उसको लिख दिया ई रेस पावर माइनस जे टी। एक और सिग्नल है एक्स टू टी, वो भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको फिर कैसे लिखेंगे? फिर उसके लिए ई रेस पावर माइनस के टी या फिर आयटा टी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग सिंबल जे या फिर आयटा जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा सिग्नल से आपको मल्टी चैनल सिस्टम होगा, तो उसमें एक से ज्यादा सिग्नल्स होंगे, और उस केस में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको उसमें आई जे के ये सब यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। यस सर। और सर आपने ये इसको इक्वेट कैसे कर दिया, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी से? तो उसी से रिलेट करेंगे। ई नहीं रेस सर। पावर माइनस माइनस जे टी क्या होता है? ये तो एंगल ही है ना इसका, थीटा। जी सर। तो थीटा एंगल जो है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो बाद अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करोगे, तो टी को हम ओमिट कर सकते हैं, जे कैप को भी ओमिट कर सकते हैं, तो ओमेगा बच गया। तो ओमेगा को हमने रिलेट कर दिया, ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है, तो उससे टी फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल टी 2 पाई। ठीक है सर। फिर हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। इसमें दो साइनोसाइडल सिग्नल्स हैं, एक तो साइन 3 पाई टी प्लस 4, और प्लस कॉस पाई बाय 3 इंटू टी, और ये कंबाइन करके एक नया सिग्नल बनाते हैं एक्स ऑफ टी। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस एक्स ऑफ टी विच इज अ न्यूली फॉर्म्ड सिग्नल बिकॉज ऑफ द समेशन ऑफ टू सिग्नल्स इज पीरियोडिक और नॉट। तो आप कोशिश करके देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड पता करना है आपने। तो आप 10 मिनट्स के राउंड ले लो इसको सॉल्व करने के लिए, और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो अभी। पार्ट सी, एक्स टी इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 3 इंटू टी। हाँ जी, कुछ पूछना हो इसके बारे में, कुछ अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और अदरवाइज अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको 10 मिनट्स मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। अगर नॉन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करो।
हाँ जी शिवम, आपने करके देखा सॉल्व? सर पीरियोडिक होगा। संचित, संचित, संध्या, सर पीरियोडिक है, वैसे भी सॉल्व कर दिया। पीरियोडिक। यस सर। सो देखते हैं इसमें कि ये कैसे करना है सॉल्व। सो इसमें हम x ऑफ टी हमें दे रखा हुआ है, इसको साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4 है, और दूसरा पार्ट इसमें cos पाई बाय 3 इंटू टी है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट सिग्नल इज इक्वल टू x1t एंड सेकंड सिग्नल इज इक्वल टू x twice of t. We can find the time period of these individual signals. x1t will be a periodic signal with a time period equal to 2/3. ये हमने पार्ट ए में भी करके देखा है। x twice of t is a periodic signal with a time period equal to 6. So both this signal and this signal are periodic signal. So but we have to identify whether the sum of these two periodic signal is also comes out to be a periodic or a non-periodic signal. तो दो periodic signal का sum periodic भी हो सकता है और non-periodic भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि दोनों का सम पीरियोडिक है या नहीं है? तो हम जो इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स हैं दोनों सिग्नल्स के, उनको डिवाइड कर देते हैं और we take the ratio of t1 and t2, that is the individual time periods of periodic signals which are being added to generate a new signal. So दोनों का हम टाइम पीरियड का रेशियो ले लेते हैं, and if say time the ratio of the time period of these two individual signal happens to be a rational number, then we say that the resultant signal which is formed by the sum of two individual periodic signal is also a periodic signal, right? अगर t1 by t2 का जो रेशियो है उसमें इरेशनल नंबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का सम जो है वो दो periodic सिग्नल का सम जो है एक नॉन periodic सिग्नल के फॉर्म में रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में 2/3 divided by 6 is equal to 1/9. So as 1/9 is a rational number, hence the xt signal, which is the sum of two periodic signal, is also a periodic signal. Now let us assume that what happened in the case of irrational number. Suppose अगर हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे साइन 3 पाई टी की जगह साइन 3t कर दें, साइन 3t प्लस पाई बाय 4 कर दें, तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा ना उसमें पाई का टर्म आ जाएगा, क्योंकि टाइम दिस 3t that is 3 is equal to omega and omega is equal to 2 pi by t, and the time period will be equal to, right, 2 pi by t is equal to 3t, t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 pi by t is equal to 3 रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा t is equal to 2 pi divided by 3। तो 2 pi divided by 3 जब आप रेशियो लोगे इसके अकॉर्डिंग तो उसमें pi by 9 आ जाएगा, and now pi by 9 is a irrational number because pi is a irrational number। हम pi को 22 divided by 7 लिखते हैं, पर वो बहुत ही रफ एस्टिमेशन होती है और ज़्यादातर अलजेब्रा में यूज़ किया जाता है। हम उसको आगे उससे एक्सटेंड नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री में भी उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, pi is equal to 22 divided by 7। ठीक है, सिर्फ अलजेब्रा में जो है उसको हम अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो ज़्यादातर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन्हीं के साथ हम ज़्यादातर डील करते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। बट जैसे ही हम मैथमेटिक्स की बाकी ब्रांचेस में जाते हैं तो वो पाए जो है वो जिसको जो एक्चुअली इरेशनल नंबर है उसको उसकी फॉर्म में लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ पाए एंड नॉट एज 22 डिवाइडेड बाय 7। सो पाए इज ए काइंड ऑफ अ इरेशनल नंबर, और या फिर पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है 3.142, क्योंकि उसमें हम बता सकते हैं कि द नंबर इज एक्यूरेट ओनली अप टू सेकंड प्लेस डेसिमल, तो इस तरह से हम अजम्पशन लेके चलते हैं। सो if the ratio of two periodic signals, or the ratio of the time period of the two periodic signal happens to be a rational number, then the resultant signal will also be a periodic signal. The time period of the resultant signal can be found by taking the LCM of the individual time period, that is LCM of T1 and T2. When you take the LCM of these two signals, then the time period will the resultant time period
For example, in this case, the time period will be equal to 6, right? So 6 will be the resultant time period of the combined signal, that is xt. So this is about the signals where you have the sum of two periodic signal and you have to identify whether the sum or the addition of the two periodic signal is also periodic or not. ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इसमें. Yes, any question? No, sir. Clear. So next is this discrete time signal. X1n is given to us, and this is the expression, that is sine 3 pi divided by 7 into n plus pi by 4, and it can be related with sine omega naught into n plus phi. We know that sine theta or sine omega naught n plus phi is a periodic signal, so hence this signal has to be a periodic one. Now the only task which will be left is to find the time period of the signal. So ये solve किया हुआ है, एक बार आप इसको देखो solution को, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछो, ठीक है. यस, ये सोल्यूशन है, स्क्रीन शेयर किया हुआ है. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो. आप 5 मिनट्स के लिए सोल्यूशन को थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है, कैसे सॉल्व किया हुआ है. और उसके बाद जो है वो अगर आपको कोई डाउट है तो फिर हम वो डाउट लेंगे, ठीक है. सो हैव अ लुक ऑफ दिस सोल्यूशन and how to identify or to find the time period of a discrete time signals. तो जो इसमें प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है उसको एक बार देखो और उसको समझने की कोशिश करो. उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे, राइट. तो आप 5 मिनट के लिए इसको देखो, उसके बाद फिर हम डाउट लेते हैं. सर ये m की वैल्यू हाँ जी, m की वैल्यू संध्या आपका आवाज बहुत ही कम आता है जब आप बोल रहे होते हो ना. बाकी सभी स्टूडेंट्स का ठीक आ रहा होता है, मे बी माइक जो है ज्यादा दूर होता होगा या फिर उसका कनेक्टिविटी जो है वो इतना अच्छा नहीं. सर मेरा गला खराब है, अच्छा अच्छा. हाँ जी, पूछो. सर जो ये m की वैल्यू है ये 3 कैसे है? m की वैल्यू 3 कैसे है, ठीक है. बाकी स्टूडेंट आप भी देखो m का वैल्यू 3 कैसा है. किसी को अगर पता लग रहा हो तो बताना है, ठीक है. संध्या देखते हैं बाकी स्टूडेंट जो है, एक बार उनको सोल्यूशन देखने दो और फिर देखते हैं कि वो क्या आंसर दे पाते हैं इसके बारे में कि m का वैल्यू 3 क्यों लिया है. नंबर ऑफ वेव्स तो नहीं है यहाँ 3 वेव्स. हाँ, वो एंड में कंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, वो अलग चीज है, पर वो कंक्लूजन बाद में आया है. पहला m का वैल्यू हमने लिया है, ठीक है ना. तो जो लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है 3 साइकिल, वो एकदम एक तरह से आउटकम है. तो जो प्रोसीजर है वो पहले हमने कर लिया था, जो हमने टास्क करना था वो पहले कर लिया था. तो उसमें m का वैल्यू 3 पहले ही ले लिया था. तो 3 ली क्यों लिया? ग्राफ से देख के नहीं कर सकते, ग्राफ में देख के 3 आ जाएगा. ग्राफ तो प्लॉट करना बहुत मुश्किल काम है, ग्राफ नहीं प्लॉट करते हम. ये तो एग्जांपल के लिए लिखा भी है, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, ठीक है. क्योंकि अगर आप वो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करोगे तो उसमें n का वैल्यू 0 करोगे, सब्स्टिट्यूट फिर 1 करोगे, एंगल फाइंड आउट करोगे, वो तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिसिटी आइडेंटिफाई करना. कितना वैल्यू 14, इसमें 14 सैंपल्स रखने हैं टोटल. तो 14 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पीरियोडिसिटी का पता लगेगा. तो हर बार आपको कैलकुलेटर से जो है साइन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले एडिशन करोगे, 3 पाई डिवाइडेड बाय 7 प्लस पाई बाय 4 कितना एंगल बनता है, फिर उसका एंगल कैलकुलेट करोगे, फिर वैल्यू आएगी आपके पास. तो वो ग्राफिकली नहीं कर रहे हैं हम, इसको मैथमेटिकली कर रहे हैं.
आ गया सर। सर इसमें n की वैल्यू इस तरीके से ली है कि जो कैपिटल n है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू आए। हाँ जी संध्या, बिल्कुल यही है कि स्मॉल m का वैल्यू जो है वो 3 इसलिए लिया हुआ है कि जो कैपिटल n है उसका वैल्यू अदरवाइज नॉन इंटीजर होता, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमें टाइम पीरियड की लेनी होती है, तो उसके लिए m का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है सो दैट इट कैन कन्वर्ट ए नॉन इंटीजर वैल्यू इनटू एन इंटीजर वैल्यू। हाँ जी संचित, शिवम, संगीता, यस सर। कुछ पूछ रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में। नो डाउट सर। शिवम, यस सर। हाँ जी, कोई डाउट हो तो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। संचित, नहीं सर, नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल वही जैसे पहले भी संध्या ने भी बताया कि कैपिटल एन जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाय 7 इक्वेट करेंगे, 3 पाई बाय 7 इज ओमेगा नॉट हियर, राइट, इन दिस एक्सप्रेशन। सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, the result tell us that the solution will be equal to 14 divided by 3, but 14 divided by 3 is not a integer value, as we are plotting the time period along the x-axis, and we know that in case of discrete time signals the x-axis only hold for integer values and it does not have any place for non-integer value. So 14 divided by 3 does not fit into the graph or the definition of the discrete signals. So we have to multiply it with some scaling factor, say small m, so that we can convert that 14 divided by 3 into an integer value, and that should be the smallest integer values, because we know that the time period of a signal can, for example, in this case, it can be equal to 14, it can also be equal to 28, because the signal is going to repeat itself after the elapse of 14 units, and it can also be repeated after the elapse of 28 units, or even after the elapse of 42 units also. But we have to select the shortest possible time period after which the signal is repeating itself, right? So that's why we have taken the smallest possible value of small m, which can convert this 14 divided by 3 from integer
domain from non-integer domain to integer domain, right? So that's why we have taken m is equal to 3. और इसका solution करके देखोगे तो आपके पास time period 14 आ जाएगा, right? So now if you try to plot the graph 14 में हमें ये small m जो है इसमें mathematically तो पता लग गया 3 आ गया. अब ये 3 क्या चीज है? ये 3 हमें बताता है कि how many cycles are needed to show the periodicity by the discrete time signals. तो इसमें 3 साइकिल्स लगे हैं क्योंकि मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया है. ग्राफिकली आपको एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता. तो इसमें जो है वो 3 साइकिल्स लगे हैं टू शो द periodicity by the given signal. इसका हमने एक एग्जांपल लिया है. दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू. वी हैव ट्राइड टू you can say that try to relate this graph with this particular mathematical expression by taking some values or some obvious values. For example, when n is equal to 0, this will be equal to sin 0 plus sin pi by 4. So exact value जो है वो sin pi by 4 आनी थी. तो sin pi by 4 जो है वो अगर हम pi by 4 omit कर देते हैं, इसमें से pi by 4 neglect कर देते हैं क्योंकि वो तो फेज शिफ्ट है, वो सिर्फ सिग्नल को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन जो आप ऐड कर रहे हो. एक तरह से शिफ्टिंग है, ठीक है ना. जैसे हम टाइम शिफ्टिंग करते हैं, इसमें एंगल की फॉर्म में ऐड किया हुआ है. ये आपका n के ऊपर डिपेंडेंट है, ये n के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है. तो इसको शिफ्ट किया हुआ है. तो इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दें pi by 4 को, तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा फॉर n इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. उसके बाद n का वैल्यू 1 आएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू sin 3 pi डिवाइडेड बाय 7. तो 3 pi डिवाइडेड बाय 7 मींस आपका 3 pi डिवाइडेड बाय 7. सो 3 into 180 डिवाइडेड बाय 7, उसको आप सॉल्व करके देखोगे तो कोई वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड की अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी. इस तरह से हमने अलग अलग सैंपल्स प्लॉट किए हुए हैं. जैसे ये पहले 0 है, ये कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो, 0.7 अज्यूम कर लो, ये -0.6 अज्यूम कर लो. इस तरह से वैल्यू लेके चलते जा रहे हैं. तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, ये कुछ मैग्नीट्यूड आया, ये नेगेटिव में मैग्नीट्यूड है, ये और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड है, ये थोड़ा नेगेटिव में कम मैग्नीट्यूड है पर 0 नहीं है. तो हमें इसको देखना है पूरे सिग्नल को 0 कहाँ पे आ रहा है. अज्यूम करो 0 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो इस केस में अगर आप साइकिल्स कैलकुलेट करो तो इस केस में हमारे पास दिस इज द फर्स्ट साइकिल प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दिस इज द सेकंड साइकिल प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दिस इज द थर्ड साइकिल प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. सो इट हैज टेकन 3 साइकिल्स टू शो द periodicity बाय द सिग्नल. तो 0 से शुरू हुए थे, 0 बाद में 14th सैंपल पे जाके आई है, ठीक है. तो हम वी कैन से दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू 14. सो यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू 3 मीन्स इसको 3 साइकिल्स लगे हैं सिग्नल को, और 3 साइकिल्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के 3 साइकिल्स लगे हैं टू शो द periodicity कि सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है. ऐसे फिर से 3 साइकिल कंज्यूम होंगे इसके आगे और 0 आएगा. ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे 3 साइकिल्स कंज्यूम होंगे तो उसके पास 0 आएगा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन CT एंड DT सिग्नल. CT periodic सिग्नल में ऐसा कुछ नहीं होता. अगर यहाँ पे हम t लिख देते sin 3 pi 7 डिवाइडेड बाय t, उसका एक ही साइकिल में periodicity आ जानी थी. सॉरी, उसका जो है वो इस तरह से एक ही साइकिल में उसका जो है वो periodicity आ जाना था, ठीक है. ये 3 pi by 7 ही होना था. अगर यहाँ पे 3 pi 7 की जगह 5 pi by 7 into t होता तब भी एक ही साइकिल में टाइम periodicity आनी थी, ठीक है. तो ये 0 से स्टार्ट होके 5 pi by 7 पे एंड हो जाता. अगर यहाँ पे 9 pi डिवाइडेड बाय 7 होता तब भी यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, इसने ये एंडिंग पॉइंट 9 pi by 7 ही बनना था. इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, डिस्क्रीट प्रॉपर्टी है. तो इसमें हमें साइकिल जो है वो काउंट करने पड़ेंगे कि कितने साइकिल्स के बाद सिग्नल जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है. वो एक साइकिल बाद भी रिपीट कर सकता है, वो nth साइकिल के बाद भी रिपीट कर सकता है अपने आप को. सो आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है. यस सर. ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आप देखो. इसमें 2 सिग्नल दे रखे हैं, xt इज इक्वल टू साइन 12t प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस 6t माइनस पाई बाय 4. तो ये पहले हमने जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा रिजेंबल करता है. आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है. टाइम पीरियड के लिए तो हो सकता है आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बट
जो ए पार्ट शो कर रखा है वो सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? सर सर पीरियोडिक है। पीरियोडिक है। संध्या? पीरियोडिक से। संचित? सर पीरियोडिक। संचित पीरियोडिक कैसे आया? संचित? ऐसे ऐसे दो मिनट। कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, सीधा आप T1 और T2 को आइडेंटिफाई करके देखो, रेशो जो है वो, यस रेशो। है ना, क्योंकि इसमें यस 12 टी है। यस अगर इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 12, तो टी आपके पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल टू 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा। इसमें आपके पास पाई की फॉर्म में आएगा टाइम पीरियड। और 6t का भी जो है वो भी आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 दैट इज पाई बाय 3। तो दोनों में पाई की टर्म आ रही है, जब रेशियो लोगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रैशनल वैल्यू ही आएगी। तो एज द रेशियो ऑफ T1 बाय T2 इज रैशनल, सो द सिग्नल इज पीरियोडिक। अगर इनमें से किसी में भी 12 के साथ, मान लो 12 के साथ पाई आ जाता है, 6 के साथ पाई आ जाता किसी एक में, तो सिग्नल जो है वो नॉन पीरियोडिक चला जाता। ऐसे ही सेकंड सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, xt इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस 1 बाय 2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय साइन पाई टी। शिवम, पार्ट बी। शिवम, यस सर। पार्ट बी पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? सर नॉन पीरियोडिक। संगीता? सर नॉन पीरियोडिक होगा, कैसे नॉन क्योंकि पीरियोडिक होगा? सर क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो पीरियोडिक को भी नॉन पीरियोडिक कर देगा। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 1 बाय 2 इंटू टी जो है वो डिकेइंग फंक्शन है, और साइन पाई टी जो है वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन का सिग्नल है। तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन जब डिकेइंग फंक्शन से मल्टीप्लाई होंगी तो वो ऑसिलेटरी सिग्नल जो है वो डिके कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और जो सिग्नल की प्रोडिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। आप पार्ट 3 करके देखो, आज की जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड है इसमें सभी। हाँ, तो इसका डी पार्ट करके देखते हैं सबसे पहले, इसमें थोड़ा टाइम कम लगना चाहिए और आप इजिली आइडेंटिफाई पाओगे। सो फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल और नीदर। तो पार्ट बी सॉल्व करके देखो और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन बताओ। आप 10 मिनट्स ले सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया है क्लास में एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। फाइंड वेदर द एक्सप्रेशन रिटन अंडर पार्ट बी, पार्ट डी, x of n is equal to n into u of n is a periodic signal or a non-periodic signal. So you can take 10 minutes, and I hope 10 minutes are enough to solve this numerical problem. You have to identify whether this signal is E signal or P signal, that is energy or power, or neither. कोई भी नहीं है इनमें से, ना तो एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है। सर आपने आज के लेक्चर के नोट्स नहीं अपलोड किए हैं क्लासरूम पे, अब आज कर क्लास दो। में थोड़ा लिखा होगा आपने एक्सप्रेशन देख के। नो सर क्या मैंने नहीं एक्सप्रेशन था? लिखा। एनर्जी सिग्नल का क्या एक्सप्रेशन होता है? सर इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी। इंटीग्रल जो है उस केस में आता है सर समेशन ऑफ सीधी सिग्नल, एन। समेशन ऑफ। समेशन ऑफ एन। मैं शेयर कर देता हूँ आज का नोट्स में। ये रहा, ठीक है, ये नोट कर लो एक्सप्रेशंस, फिर मैं वापस उसी पीडीएफ फाइल पे चला जाऊंगा दूसरी ट्यूटोरियल शीट वाली पे। ये नोट कर लो ई और पी के एक्सप्रेशन। जब आप नोट कर लोगे हो बता गया देना, सर। मैं फिर हो गया नोट। यस संध्या? सर। नहीं सर अभी नहीं।
संध्या नोट कर लिया आपने ई और पी का एक्सप्रेशन? यस शिवम? ये सर एक मिनट सर, हो गया संचित? संचित? हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो ये सर क्वेश्चन है। ओके, ये डी पार्ट है, आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई पी। ठीक है, अगर ई की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो ये एनर्जी सिग्नल हो जाएगा, अगर पी की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो ये पावर सिग्नल होगा। अगर सपोज करो ई और पी दोनों की वैल्यू जो है वो फाइनाइट नहीं आती, फाइनाइट मीन्स जीरो इन्फिनिटी के बीच में, तो ये सिग्नल जो है ना तो एनर्जी सिग्नल बोला जाएगा ना ही पावर सिग्नल बोला जाएगा। इसको फाइंड आउट करके देखो क्या वैल्यूज आती है। आपको पता है यू ऑफ एन जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होता है या इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होता है? यू ऑफ एन समझते हो ना आप? सर संचित? यूनिट से फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यू ऑफ एन को कैसे लिखते हैं? यू ऑफ एन इज इक्वल टू, संध्या? संध्या, यू ऑफ एन इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? संगीता? संगीता? संचित? यस यस सर। हाँ जी, यू ऑफ एन कैसे लिखते हैं? नो आइडिया सर। ये किया तो हुआ पहले। सर याद नहीं आ रहा। नहीं, इसमें ये तो बहुत ही बेसिक है यू ऑफ एन, ये अभी इसमें भी है मेरे ख्याल से। ये रहा डी टी यूनिट स्टेप फंक्शन, ये एक्सप्रेशन है इसका जो हाईलाइट किया हुआ है। नोट कर लो इसको भी, ये बहुत बार यूज होंगे, इनको बेसिक सिग्नल इसीलिए बोला जाता है। u of n is equal to 0 for n lesser than 0 and 1 for n greater than or equal to 0। ठीक है, समेशन जो है n फ्रॉम -22 टू प्लस इन्फिनिटी वो चेंज हो जाएगा। क्या रेंज आ जाएगी समेशन की u of n के लिए? शिवम? सर क्या क्वेश्चन क्या था सर? ये u of n क्लियर हो गया ना आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो जब एनर्जी सिग्नल फाइंड आउट करोगे या पावर सिग्नल फाइंड आउट करोगे तो समेशन तो लेना पड़ेगा ना। यस सर बिल्कुल। तो जब समेशन लोगे तो उसकी रेंज क्या आएगी? एक मिनट सर। ये है ना, E इज इक्वल टू एन फ्रॉम -72 प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन स्क्वायर। तो यहाँ पे समेशन की रेंज क्या आएगी? इस -70 से +70 में कैसे चेंज हो जाएगा? सर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ही रहेगी सर। ठीक है, करके देखो फिर। ठीक है सभी लोग, अब यू ऑफ एन का आपको पता लग गया, यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन लेसर देन 0 एंड यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्मॉल एन तो आपके साथ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो वेरिएबल है। ठीक है ना, जैसे एन का वैल्यू 0 1 2 3 होता रहेगा, ये भी चेंज होता रहेगा। तो इसको सॉल्व करके देखो वेदर दिस सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल और नीदर एनर्जी नॉट पावर। ठीक है, कोई स्लाइड कोई रेफरेंस के लिए कोई चाहिए होगा तो मेरे को बोल देना, मैं वो स्लाइड जो है फिर से जो है वो शेयर कर लूंगा। तो आप 10 मिनट्स के अराउंड टाइम ले लो।
हाँ जी, करके देखा आप लोगों ने? पीरियोडिक है या सॉरी एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? सर जो संचित। लिमिट है, हाँ जी शिवम। सर जो लिमिट है वो 0 से लेकर इंफिनिटी हो जाती है। हाँ, 0 to इंफिनिटी हो जाएगी आगे। और टाइम चाहिए करने के लिए क्या? सर ये एनर्जी सिग्नल होगा। एनर्जी सिग्नल होगा। संगीता। यस सर। हाँ जी, एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, ये दोनों ही नहीं है? सर मेरा तो कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, संध्या। सर अभी नहीं किया, सॉल्व करिए। ठीक है, संचित। कर रही है। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट और लो। So, करके देखा आप लोगों ने अभी? संचित हो गया? संचित। शिवम। यस सर। कोई मॉडिफिकेशन आई रिजल्ट में या अभी भी वही है जो सेम से पहले दिया था आपको? सर वही है सर, क्योंकि जो सम है ना वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा।
संध्या यस सर, एनर्जी सिग्नल ही आ रहा है। सो शिवम, जैसे आप बोल रहे हो जो सम है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा? सर एनर्जी। कैसे? उसमें तो ई का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, वो तो इंक्लूडेड नहीं है ई की डेफिनेशन में। एंड सपोज इफ सम इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ई तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना। यस सर। तो एनर्जी सिग्नल तो नहीं हुआ फिर ये। ऐसे ही अगर पी के लिए फाइंड आउट करोगे, तो ये पी के लिए भी जो है वो ये पी का वैल्यू भी कन्वर्ज नहीं होगा। ई और पी ये दोनों दोनों के केसेस में ई और पी का वैल्यू जो है कन्वर्ज नहीं होगा इस केस में, एन यू एन। ठीक है। एक तो हम डेफिनेशन से भी पता लगा सकते हैं, जो हमने सुबह डिस्कस की थी कि डिफाइन एनी सिग्नल एज एन एनर्जी सिग्नल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल दैट इज मॉड ऑफ एक्सन। मॉड ऑफ एक्सन क्या है तो अलग चीज है, मॉड ऑफ एक्सन शुड डिके विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसमें तो यू एन तो कांस्टेंट रह रहा है, उसका मैग्नीट्यूड डिके नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक तो ये, दूसरा वो एन से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो एन से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका सिग्नल जो जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आर ऑफ एन बन जाएगा, यूनिट रैंप फंक्शन बन जाएगा डिस्क्रीट डोमेन में, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो एनर्जी सिग्नल तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही खत्म हो जाता है। जब आप फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो जैसे शिवम आप बता रहे हो कि जो समेशन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो वो सिग्नल जो है वो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। ऐसे ही पावर जब आप फाइंड आउट करके देखोगे, तो वो भी फाइनल वैल्यू जो है वो कन्वर्ज नहीं होगी किसी वैल्यू पे। जो पी का वैल्यू है वो भी 0 या इन्फिनिटी जो के बीच में नहीं आएगा, राइट। वो भी आपका जो पावर का जो वैल्यू है वो भी कन्वर्ज नहीं होगा फाइनाइट वैल्यू पे। तो इसके बाद जो रिजल्ट बच जाता है वो थर्ड रिजल्ट बच जाता है, दैट इज दिस सिग्नल इज नीदर एन एनर्जी सिग्नल नॉर अ पावर सिग्नल। तो ये इसका आंसर आएगा, दैट इज एन यू एन इज नॉट इज नीदर एन एनर्जी सिग्नल नॉर अ पावर सिग्नल, दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है एनर्जी और पावर सिग्नल्स की, जैसे ये बाकी पार्ट्स रह जाते हैं ए बी सी और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास जो भी आपकी होगी। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, डाउट है तो कोई। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।